اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے سبق میں کچھ عبارت کی توضیح اور اس کی ترکیب بتائی گئی تھی. ترجمہ کا قاعدہ بتایا گیا تھا کہ ترجمہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، عبارت کیسے پڑھنا ہے، جہاں پر جملہ ختم ہو وہیں پر آپ کو کیا کرنا ہے، رکنا ہے اور اتنی ہی جملے کی کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے اور اتنے جملے کی کیا کرنا ہے، ترکیب کرنی ہے. اور پھر دوسرا جملہ شروع کرنا ہے، پھر دوسرے جملے کی ترکیب اور ترجمہ کرنا ہے. یہ تو خطبے کی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے درمیان بیان کی جا رہی ہیں. کل انہوں نے اپنے کتاب کی خصوصیت بتائی تھی. کیا کہ یہ کتاب جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہے. کیا ہے؟ مختصر ہے لیکن مضبوط ہے. کہاں؟ علم نحو میں. اگر اس کتاب کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو آپ کے لیے عبارت خوانی، ترجمہ نگاری، مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر آپ نے اس کو بے توجہی سے پڑھا اور غور نہیں کیا تو پھر جیسے آپ آئے تھے پھر آپ ویسے ہی یہاں سے واپس ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ آپ کو محنت کرنا ہے. ایک خود بتایا تھا کہ یہ کتاب مختصر ہے اور مضبوط ہے، اور ہم نے مضبوط کا معنی جو بتایا تھا، مضبوط کا معنی ایک تو وہی طاقتور، فائدہ دینے والا، اور ایک بتایا تھا ہم نے محفوظ. کیا اس کا معنی؟ محفوظ کریں گے تو صلہ کیا گا؟ عن الحش والزوائد. محفوظ ہے فالتو اور بیکار باتوں سے. آج جب پھر تو میں کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترکیب بتا دیتا ہوں. ترکیب کو بتا دیا تھا لیکن پھر آج میں اصل میں ترکیب کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم یہ پورا یہ جو ہے جہاں تک ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا کیسے آپ کو پڑھنا ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے. اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا مفصلا مبوبا مفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ أن فهم المسائل. وسميت یہاں بس مسائل تک، یہاں تک بات مکمل. وسميت أن فهم المسائل تک ایک پورا جملہ ہے. اس کے اندر کئی خوبیاں انہوں نے ہدایت النو کے شمار کرا دی ہیں. اولا تو یہ رسالہ، یہ کتاب کس فن میں ہے؟ علم. مضبوط ہے، مضبوط علم نحو میں. اور اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر خوبی ایک یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے نحو کی بڑی بڑی باتوں کو کافیہ کی ترتیب پر. اس کے کافیہ کے اندر جیسے پہلے اسم ہے، پھر فعل ہے، پھر حرف ہے، ایسے ہم نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے. سب سے پہلے ہم کس کو بیان کریں گے؟ اسم کو، پھر فعل کو، پھر کس کو؟ حرف. بس میں ایسے ہی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑا سا کافیہ میں ابواب کی تعین نہیں، فصل نہیں، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہم نے باب بنایا ہے اور فصل بھی بیان کر دی ہے.
और क्या किया है, और साथ साथ हमने क्या है, वाज़ह, बहुत वाज़ह इबारत। ये फर्क है किसमें, काफिया और हिदायतुन नौ की काफिया की इबारत बहुत मुख्तसर है, काफिया की इबारत बहुत मुख्तसर है और बहुत पेचीदा है, लेकिन हिदायतुन नहव की जो इबारत होगी वो बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल वाज़ेह है। काफिया के अंदर एक चीज है, उसके अंदर किसी कायदे की मिसाल नहीं बयान की, क्या कवायद के अमसाल नहीं लाए गए, लेकिन हिदायतुन के अंदर हर कायदे की क्या लाई गई है, मिसाल लाई गई है, समझे। अरे क्या है, और हमने हर एक की दलीलों को, इल्लतों को जिक्र, ये खूबी है। कभी कभी किसी चीज का होना बंदे के अंदर, किसी चीज के अंदर खूबी होता है, और कभी किसी चीज का ना होना उस बंदे के लिए क्या होता है, खूबी होता है। मसलन आप आलिम हैं, खूबी है, आप हाफिज हैं, खूबी है, आप कारी हैं, खूबी है ना, आप कातिब हैं, खूबी है, आप मुत्तकी हैं, खूबी है, आप परहेजगार हैं, खूबी है, आप शराबी नहीं है, खूबी है। अभी देखो होना होना हो रहा था, अब क्या है, शराबी नहीं है, ये भी खूबी है, जुआरी नहीं है, ये भी खूबी है, आप चोरों की तरह बाहर नहीं घूमते, ये भी खूबी है, आप मेहनत पढ़ते हैं, मेहनत से जो चीज नहीं चुराते हैं, ये भी क्या है, खूबी है। तो कभी कभी किसी चीज का ना होना खूबी होता है, और कभी किसी चीज का होना खूबी होता है। तो कह रहे हैं कि हमने दलीलों को, इल्लतों को जिक्र ना किया, ये भी क्या है, खूबी है। क्यों नहीं जिक्र किया, ताकि इब्तिदाई तालिब इल्मों के का जहन वशवशे में ना पड़ जाए, कि वो दलाइल में मुस्तगरक हो जाए और असल मसला उसके जहन से क्या जाए, निकल जाए। इस वजह से इन्होंने ऐसी बात नहीं की कि हर कायदे के कायदा बयान किया, मिसाल लाया, लेकिन उस कायदे की दलील क्या है, इसको जिक्र नहीं किया। कि उर्फ़ जारा 17 है, कितने, और क्या मुकम्मल है, अपने इसम को मजरूर जर देते हैं, जर करते हैं। क्यों जर करते हैं, इसको हम पर इतना जानो, इस पर ये दाखिल होंगे, उसके आखिर को क्या कर देंगे, क्यों जर करेंगे, इसके चक्कर में अभी आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप समझना कि ये जर देते मुजाफिले मजरूर गुलामो ज़ैदिन। अब जैद के नीचे कसरा मुजाफिले की वजह से है, तो क्यों है, मुजाफिले मजरूर क्यों होता है, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना पेश जैद खड़ा है। तो हमने बताया था हुरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हैं, इन्ना, अन्ना, वकान्ना, वलाकिन्ना, वलैका, लअल्ला। ये क्या करते हैं, जिस इसम पर दाखिल होते हैं उसको क्या करते हैं, नसब, और उसके बाद वाले इसम को रफा, जैसे इन्ना ज़ैदन। अब इन्ना नसब क्यों देता है, इसके बारे में मत जानो मुझसे, इन्ना कान्ना नसब क्यों देता, वलाकिन्ना नसब क्यों देता, इसके बारे में अभी हम कुछ भी बयान, इतना जान लो हुरूफे मुशब्बा बिल फेल इस पर दाखिल होते हैं, उसको क्या करते हैं, नसब करते हैं, और उसके बाद वाले को अफ़ाल नक्शा 17 पढ़ा था। उनका काम क्या है, अपने इसम को रफा करना और अपनी खबर को नसब, जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, काना ज़ैदुन। तो अब इतना जानो, काना जिस पर दाखिल होगा उसको रफा करेगा, उसके बाद वाले इसको नसब करेगा। काना क्यों दाखिल होता है, क्यों नसब देता है, क्यों रफा करता है, इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। बस ये मसाइल हैं और ये मिसालें हैं, इनको नशी कर लो। अगर क्या चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, इतना ही याद कर लो, ये तुम्हारे लिए काफी है। जब बड़ी किताबों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा काना क्यों नसब देता है, क्यों रफा देता है, वो आपको पता चलेगा। आगे चल करके
हम इन चीजों पर यहाँ पर तज़किरा नहीं करेंगे। ये पूरा सबक हम कल पढ़ा चुके हैं। आज इसकी थोड़ी सी तरकीब मैं करके, देखिए हर जगह मैं तरकीब नहीं करूँगा, हर सबक की तरकीब जहाँ जहाँ जरूरी बातें होंगी वहां पर तरकीब करके हम आपको गुजर जाएंगे, क्योंकि हमें पूरी किताब भी क्या है पढ़ाना, क्योंकि ये दर्स है और हमारे मदरसे का क्लास भी है, इसलिए हम इसमें बहुत तो तफसील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तो जितनी जरूरी बातें होंगी उसको हम क्या कर देंगे, बयान कर देंगे। कल का एक सबक है उसको समाअत कर ले। हाँ ज़िम्मन हम कवायद बताते रहेंगे, क्या ज़िम्मन हम कवायद बताते रहेंगे और उसी को आप जहन नशी रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले तर्जुमा सुन लो कल के सबक का और फिर मैं उसकी तरकीब कर दूँ। अम्मा बादु, हम दो सलात के बाद फहाज़ा मुख्तसरुन मसबूतुन फिन नहवी, ये किताब मुख्तसर है। किताब तर्जुमा हमने कर दिया और मैं बता दें किताब तर्जुमा हमने कहाँ किया, ये मुख्तसर है, मजबूत है, महफूज है हश्र रवायत से इल्म नहव में, यह मजबूत है इल्म नहव में। मैंने इसके अंदर जमा कर दिया है नहव की बड़ी बड़ी बातों को काफिया की तरतीब पर बाब बाब करके, फसल फसल करके, वाज़ेह इबारत के साथ, मिसालों के लाने के साथ, तो उसके तमाम मसाइल में, और मैंने इसका नाम रखा है बगैर किसी दलीलों और इल्लतों के जिक्र की हुई, ताकि मुक्तदी के जहन को वशवशे में ना डाले मसाइल के समझने से। और मैंने इसका नाम रखा है हिदायतुन नहव। ऐसे रिचान उम्मीद करते हुए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की इसके जरिए से तालिबी को क्या करे, रफ़ा पहुंचाए, हिदायत दे। यहदी अल्लाहु, अल्लाह ताला हिदायत दे, समझे, इसके लिए भी इस किताब के जरिए किसको, अत्तालिबीना, किसको, वरतबतहु अला मुक़द्दमतिन, और उसको मुरतब किया है, उसकी तरतीब दी है एक मुकदमे में, एक मुकदमे पर और 3 अक़साम पर। अल्लाह ताला बितौफिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाह, क्या, बादशाह गालिब ज्यादा जानने वाले की तौफीक से। इसका हम इसका तर्जुमा करेंगे बाद में, जितना हमने कर दिया था हमने कर दिया है, जितना कल हमने किया था, कितना किया था सम्मिलित होता ना, आगे मैं अभी इसकी तौफीक करूंगा कैसे आपको पढ़ना। हम 2-3 दिन पढ़ के बताएंगे, फिर हम इबारत नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इबारत आपको पढ़ना होगा। हम 2-3 दिन पढ़ करके आपको बता देते कैसे पढ़ा जाता है, फिर आप खुद क्या करेंगे, इबारत पढ़ेंगे, एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन। तरकीब सुनो गौर से, तरकीब गौर सुनोगे समझ में आएगा। अम्मा बात, हमने बताया था कि ये अम्मा शर्तिया है, क्या है, ये कायम मकाम शर्त है। ये असली बात क्या थी, महमा यकुन मिन शैइन बादल बसमलती वल हमद, बादल हमद वस बसमलती, बस में आ रही, ये बात ये उसी का मफूले फी है, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। फहाजा ये फजाइया है, हाजा ये क्या है, पता है। अगर मारिफा के बाद क्या कोई इसम मारिफा हो, कोई इसम और उसके बाद फौरन नकिर आ जाए, उसके बाद फौरन, तो जो मारिफा होगा उसको बनाएंगे मुब्तदा और जो नकिरा होगा उसको बनाएंगे हम खबर। अब वो खबर बनने की तमाम सूरतें हैं, कभी जुमले फेलिया खबर होती है, कभी जुमले इस्मिया खबर, कभी पूरा जुमला मिल मिला करके क्या बनता है, खबर बनता है। तो अब हाजा ये क्या है, इसमें इशारा है, और इसमें इशारा क्या होता है, मारिफा के अक़साम से कि नहीं है, मारिफा के अक़साम पढ़ा होगा तो उसमें इसमें इशारा है, इसमें किनाया है, इसमें अदद है, इसमें मफूल है, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं। तो ये हाजा है, इसमें इशारा, और उसके बाद वाला आने वाला क्या है, मारिफा की नकिरा है, नकिरा है। तो तरकीब क्या हो गई, मुब्तदा और बाद वाला आने वाला इसमें क्या हो गया, खबर। लेकिन खबर डायरेक्ट कभी कभी नहीं बनती पूरा जुमला, तो हमने कहा हाजा
یہ اسم اشارہ مبتدا، اور ہم نے کیا نکالا تھا؟ ایک ایسے نکالا تھا، کیا نکالا تھا؟ ھذا کتاب، جو مصنف کے ذہن شریف میں کتاب محفوظ ہے، اس کو خارج میں مان کر یہ بلاغت کا بہت بڑا طریقہ ہے، بلاغت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ جب اب رابعہ خامسہ میں پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ کسی شے کو پہلے ایک ذہن میں بنایا جاتا ہے، اور ذہن میں بنا کر کے اس کو خارج میں اتار کر کے اس کی طرف اس میں اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بلاغت کا بہت بڑا طریقہ، بلاغت کا ایک بڑی قسم ہے۔ تو مصنف نے اپنے ذہن میں جو کتاب محفوظ تھی اس کی طرف اس میں اشارہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ فہذا، جس کو میں ابھی لکھ رہا ہوں، ہمارے ذہن میں جو محفوظ ہے اس کو بھی جو کتاب کی شکل دینے والا ہوں، اسی کتاب کا نقشہ اپنے ذہن بسا کر کے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب، کتاب موصوف مختصر صفت اول مضبوط صفت ثانی، فی حرف جار نحوی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا مختصر کے لیے، مختصر، جماعت فعل تا فاعل فی جار ہی مجرور، جار مجرور سے ظرف لفظ کس کا؟ جماعت کا، محمات مضاف النحوی مضاف الیہ مضاف مضاف جماعت کا مفعول به، علی حرف جار ترکیب مضاف الکافیت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مجرور، جار پہ مجرور سے متعلق کس کے؟ طرف لفظ جماعت کا، ترکیب نہیں سنا رہی ہے ابھی آئے گی دھیرے، جماعت کے متعلق، مبوبا مفصلا، جماعت کی تا ضمیر سے فاعل، قاعدہ سنو، قاعدہ سنو، قاعدہ یاد رکھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ قاعدہ یہ کہ فعل فاعل اور مفعول کے بعد صیغہ صفت آ جائے، کیا؟ صیغہ صفت، اس میں فاعل اس میں مفعول کا صیغہ آ جائے تو وہ بنتا ہے ترکیب میں ارسلنا کا شاہدا مبشرا نذیرا، تو شاہدا مبشرا نذیرا سب معطوف علیہ سے یہ کیا ہے؟ حال ہے، کیونکہ اس میں سب فاعل ہے، یہ سمجھا؟ یہ سمجھنا ہے باقاعدہ قاعدہ ہے فعل، جیسے انا ارسلنا، ارسلنا فعل نہ فاعل، انا ارسلنا، انا ارسلنا کا مفعول به، فعل آیا، فاعل آیا، مفعول به، اس کے بعد فون کیا گیا؟ صیغہ صفت آ گئی، کون؟ شاہدا، سمجھے؟ تو اب اس کو کیا بنانا ترکیب میں؟ حال، اسی وجہ منصوب بھی ہے، شاہدا مبشرا ونذیرا، جو منصوب ہے کیوں؟ حال کی بنیاد پر، کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ترکیب وقت، تو یہاں مبوبا مفصلا یہ کیا ہے؟ صیغہ صفت، چاہے اس میں فعل مانو اور چاہے اس میں مفعول مانو، مبوبا مفصلا مانو چاہے مبوبا مفصلا مانو، تب مبوبا مفصل مانیں گے تو کیا کریں؟ تو کریں پھر فیہ میں جو ہی ضمیر ہم پڑھ لیں، حال بنائیں گے، کیا؟ وعلیکم السلام، کیوں؟ ہم جب پڑھ رہے بنائیں گے، ہیں، اپنا مائک بند رکھو، کیا؟ جو ضمیر ہے ہی جماعت فی، جو ظرف ہوتا ہے، یہ کہہ دو، جو ظرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، جو ظرف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو اب جب یہ بھی مفعول بنائیں گے، مفعول وسے گا، تو اسی سے ہم کیا بنائیں گے؟ فی میں جو ہی میں وہ حال ہوگا، اور مبوبا مفصل ترکیب معطوف معطوف علیہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، تو مفعول بھی بن جائے گا، یہ بھی مفعول مطابقت، اور اگر جماعتوں میں بنائیں گے تو جماعتوں فعل تا فی الحال مبوبا مفصلا حال، فی الحال اپنے حال سن کے جماعتوں کا فاعل، بات سنا رہی ہے؟ ہاں، تو یہ بن جائے گا حال، بی عبارت،
बहरफ जार इबारत मौसूफ वाज़िहतिन सिफत अव्वल वाज़िहतिन मा मुज़ाफ। और हमने कल पढ़ दिया इबारत, हमने हर एक लफ्ज की तहकीक कर दी थी ना कि कैसे कसरत क्यों पढ़े, फतह क्यों पढ़े, जमा क्यों पढ़े, बता दे नहीं बताते। मा इरादी, मा इरादी मस्तर है, अरादा युरीदु इराद मस्तर है, मा मुजाफ है, इराद मस्तर है, समझे, मस्दर मुजाफिले है, मुजाफिले मुजाफ है। अल अमसलती क्या है, मुजाफिले है, समझे। फी हरफे जार है, जमीई मुजाफ है, फी जमीई, फी ये मुजाफ है, और मसाइलिहा मुजाफिले मुजाफ है, और हाज़मीर मुजाफिले है। मुजाफिले से मजरूर है, जार में मजरूर से मुतालिक है इराद को, मुतालिक क्या है, ये ज़र्फ़े लग हो किसका, इराद का। मिन हरफे जार है, गैर मुजाफ है, तअर्रुदी, तअर्रुदी ये मौसूफ है, तअर्रुदी मौसूफ है, ये मस्दर है, क्या है, मस्दर मुजाफ है। लाम हरफे जार है, अदिल्ला ये जमा है किसकी, दलील, अदिल्ला किसकी जमा है, दलील की। लिल अदिल्लती, अदिल्लती ये मातुफ है, वाव हरफे अत्फ है, और इलल क्या है, मातुफ है। मातुफ मातुफ से मिलकर मजरूर है, जार अपनी मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक है किसका, तअर्रुज़ का। तअर्रुज़ अपने मुताल्लिक से मिल करके मुजाफ इले है किसका, गैर का, गैर मुजाफ मुजाफ इले से मिलकर मजरूर है मिन का, मिन जार अपनी मजरूर से मुताल्लिक है इराद का, मुताल्लिक किसका है, इराद का। लाम हरफे जार है, ले अल्ला, ले अन हरफे नासिबा है, और पानी करा लिया तब लाई जाने डब्बे कट गए। ये ले अल्ला युशविशा, युशविशा फेले मुजारा है, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, उसमें हुआ आदमी इसका फाइल है, सहनल मुब्तदी पेश, कैसे बैठे थे? युशविशा मंसूब क्यों है, अनमुक़द्दर होने की वजह से। युशविशा ज़हनल मुब्तदी ये मफूल भी है युशविशा का, और अनफहमिल मसाइल तरकीब इजाफी हो तो मजरूर मुतालिक है युशविशा का। युशविशा फेल अपनी फाइल अपनी मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो करके ये क्या है, ताबीर मस्तर हो करके लाम का मजरूर, चार अपने मजरूर से मिल करके ये मुतालिक हो जाएगा ईराद से। ईराद अपने दोनों तीनों मुतालिक से मिल करके ये मुजाफ इले हो जाएगा मा का, मा अपने मुजाफ इले से मिल करके ये मफूले फी बन जाएगा वाज़िहतिन का। क्या बनाएंगे, या ये मफूले फी बनाएंगे क्या, इनतुन के फाइल और अपने और मफूल फी फेलिया जुमला इस्मिया खबरिया होकर के सिफत सानी किसकी, इबारत की। इबारत अपनी दोनों सिफत से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हो जाएगा किसका, जमातु का, समझे। जमातु अपने तमाम मुतालिका से, एक ये मुतालिक एक मुतालिक, दोनों मुतालिक से मिल करके ये बन जाएगा सिफत अपनी सिफत अव्वल मुख्तसर और सिफत सानी मजबूत से, तीनों और जमातु तीनों सिफत से मिल करके बन जाएगी क्या, खबर हाजा की। हाजा अपने खबर से मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया होकर के जजा, शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला पूरा एक जुमला था, हमने पूरे जुमले की तरकीब कर दी है। अगर समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आता और ज्यादा ठीक, समझ में आया तो ठीक, और ना समझ में आया तो और ज्यादा ठीक। वो हमारी तौजीह बाकी सब लोग जानते हैं।
ये तो था, हमने तरकीब आपको बता दिया, तरकीब हमने बता दिया है। अब ये उन्होंने किताब के अंदर अपनी खसूसियत उन्होंने बता दी है। अब दूसरे जुमला शुरू हो रहा है, उसको गौर से आपको समाअत करना है। इसका तर्जुमा याद कर लेना, इसका तर्जुमा याद कर लेना। अब कह रहे हैं कि मैंने इसका नाम रखा है क्या, हिदायतुन नह। मैंने इसका नाम क्या, हिदायतुन नह, यानी नौ की तरफ हिदायत देने वाली किताब। हिदायतुन नौ की तरफ हिदायत देने वाली किताब। अम्मा पढ़ तो ले, हम बैठे रहे तो वहीं इल्म नौ तो ना पढ़े जाए वहीं बैठे थे। जरूरी है कि हम उस बातों को गौर से समाअत करें और समझने की कोशिश करें। सम्मा युसम्मी के माने आते हैं नाम रखना। सम्मा युसम्मी के माने माना सम्मयतु सेगा जमा सेगा वाहिद मुतकल्लिम सेगा क्या माना, मैंने नाम रखा। अब एक कायदा सुनो, तरकीब है कायदा सुनो। कायदा ये कि अगर फेल के साथ जमीन लग के आ जाए, किसके साथ, बोला अगर कुछ बोलो, क्या बोलो, फेल के साथ अगर कोई जमीर लग करके आ जाए तो तरकीब में हमेशा उसको मफूले बिही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चाहे जहां भी आ जाए, अगर फेल के साथ अगर कोई जमीन लगी है तो तरकीब में हम उसको क्या बनाएंगे, आओ अगर इसम के अंदर लग करके आ जाए क्या, तो उसको बनाएंगे मुजाफ इले। तरकीब याद, ये कायदा याद रखिए, तरकीब का क्या, अगर कोई जमीर किसके साथ लग करके आ जाए तो उसको क्या बनाएंगे, आओ अगर इसम के साथ आ जाए तो उसको बनाएंगे मुजाफ इले। जैसे मिसाल ये सम्मयतुहु, सम्मयतुहु लगा हुआ है, फेल है और तफाइल है और उसके साथ जमीर लगी हुई, तो उसी जमीर को क्या बना देंगे हम, मफूल भी। समझे, किताबुहु, किताब मुजाफ हो, मुजाफ समझे, नहीं समझा, किताबुहु हमने मिसाल दिया है। तमाम मिसालें आपको मिल जाएंगी, तमाम मिसालें मिल जाएंगी। अगर इसम के अंदर जमीन लगी हुई है तो तरकीब क्या करेंगे, मुजाफ मुजाफ इले। और अगर फेल के अंदर जमीन लगी हो तो क्या बनाएंगे उसको, सम्मयतु फेल का फाइल हु मफूले बिही। जब सम्मा का माना नाम रखना, तो जब इसके माने नाम रखना होता है तो ये हमेशा दो मफूल चाहता है, हमेशा क्या चाहेगा, दो मफूल चाहेगा। जब इसका माना क्या आएगा, नाम रखना, क्योंकि कायदा है, क्योंकि बताओ, एक चीज होगी जिसको हम नाम रखें, एक वो शय होगी जिसका हम और एक नाम रखेंगे, कोई नाम देंगे ना, एक शय तो वो होगी जिसका हम और एक वो होगा जो हम नाम रखेंगे, तो दो चीजें हो गई ना। तो हमेशा क्या चाहिए इसके लिए, दो मफूल चाहिए। अब दो मफूल लाने का तरीका क्या है, अलग अलग है, क्या अलग अलग। कभी कभी दूसरे वाले मफूल पर बात दाखिल करते, कभी कभी और कभी कभी बात दाखिल, जब बात दाखिल करेंगे तो तरकीब पलट जाएगी। जब बात दाखिल करेंगे तो जार मजरूर से निकल के उधर से लघु बन जाएगा उसी फेल का, और जब हम बात दाखिल नहीं करेंगे तो डायरेक्ट उसको मफूले भी सानी बना देंगे। क्या सुनाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और ये आगे और ऐसे बहुत सारी जगह पर है जहाँ पर क्या है, इला के जरिए से मुतादी दो मफूल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम है और इहदिना इला सिरातल मुस्तकीम, इहदिना इला सिरातल। तो देखिए यहाँ पर है सम्मयतुहु, मैंने उसका नाम रखा, किसका नाम, खुद में किसी और लड़ रही है किताब, मैंने उस किताब का नाम रखा हिदायतुन नह। और जब बात दाखिल हो जाए दूसरे मफूल पर तो ऐसी सूरत में वो हमेशा बा क्या होगा, तब जब मुतादी पदो मफूल पर, दो मफूल पर दूसरे वाले मफूल पर बात दाखिल हो जाए तो वो क्या बनेगा,
तो वो जायदा कहलाएगा। वो क्या बनेगा? तो यहाँ पर पा क्या है? पा जायदा है। तरकीब हम बताते हैं। तो सम्मयतुहु, मैंने उसका नाम रखा, भी हिदायत नहवी, किसके साथ? हिदायतुन नहव, बहरफिदार, हिदायती मुजाफ, अन-नहवी मुजाफ इलैह, और मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर के मजरूर, और जार अपने मजरूर से मिलकर के ज़र्फ लग सम्मयतु का एक, और बा हटा दो, बा, तो तम क्या होगा? तब क्या होगा? तरकीब क्या होगी? सम्मयतु फेल, ता फाइल, हु मफूल अव्वल, हिदायत मुजाफ, अन-नहवी मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मफूल भी सानी, फेल अपने फे मफूल फे अपने फाइल, मफूल अव्वल मफूल भी सानी, दोनों को जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अगर इस फेल है तो जुमला इसम फेलिया, और इसमें तो जुमला इसमिया। नहीं समझा है? तो अब जब बा हटा दें तो क्या पढ़ेंगे? सम्मयतुहु हिदायतन नहवी, क्या पढ़ेंगे? और जब बा दाखिल करते हैं तो क्या पढ़ेंगे? भी हिदायतिन नहवी। बा दाखिल होने के बाद क्या आ जाएगा? क्यों? जर की, ये तो हमने इबारत आपको बता दी है। अब मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने इस किताब का नाम क्या रखा है? हिदायतुन नहव। क्यों हिदायतुन नहव नाम रखा? कहने लगे रिजाअन, असल में ये एतराज का जवाब है। रिजाअन, रिजाअन कायदा सुनो, एक कायदा है, आप लोग को समझ नहीं आ रही बात है क्या? नहीं समझ रही है? मेरी याद नहीं है, नहीं समझ आ रही, पता है? नहीं समझ आ रही, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। हाँ बोलो ना, जो बोलना है बोलो, तब ना समझेंगे हम। तो बोलो तो कुछ, हाँ या ना तो बोलो, समझ में आता तो बोलो, हाँ नहीं समझ आता तो बोलो ना। यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए, ना समझ करके, ना समझ करके हाँ बोलना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं समझोगे तो बोलोगे नहीं समझे तो हम फिर समझा देंगे, और कल जब सुनाएंगे और बोलेंगे नहीं समझे तो फिर ये नहीं समझे, नहीं समझे, फिर पिटाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। दरसगाह में आपको इख्तियार है, बोल सकते हो कि हम समझे या नहीं समझे। नहीं समझे होगा तो उस तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ से चले जाना, फिर कल सबक सुनाने के बाद कहना कि मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर नहीं बात सुनेंगे, फिर पिटाई होगी। तो नहीं समझ में आ रहा तो बता दो समझ में, तो हम उसको दूसरे तरीके से क्या कर देंगे? समझाने की कोशिश करेंगे। रिजाअन, उम्मीद की, इसके माने आते हैं उम्मीद करते हुए। कायदा ये है कि जब अन आ जाए, क्या जाए, और उससे पहले कोई इस्म आ जाए, तो तरकीब में उसको हम बनाते हैं मुजाफ। तरकीब में क्या उसको बनाते हैं? तो देखिए अनारे नहीं, और उससे पहले क्या है? रिजान, रिजाअन है, रिजाअन है। ये रिजाअन मंसूब क्यों है? नसब इस पर क्यों है? क्योंकि मफूले लहू है। क्या है? किसका? क्या है? मैं नाम क्यों रखा है? अल्लाह की रिजा, अल्लाह की उम्मीद की वजह से, अल्लाह से उम्मीद की वजह से। मफूल लहू किताब क्या है? जिसकी वजह से फेल वाक़ई हो। इसकी वजह से कैसे? ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसे मारा किसके लिए? देने के लिए। तो तादीबन जो है वो मंसूब क्यों है? मफूले लहू के, जिसकी वजह से फाइल का फेल आए, उसको बोलते हैं मफूले लहू। आप लोगों ने नोमिन पढ़ा नहीं, आप लोगों को नोमिन याद ही नहीं, नोमिन नहीं याद है? कैसे याद है? नोमिन याद नहीं, तो इसको बोलेंगे मफूले लहू। और मफूल लहू क्या था? मंसूब मुतरिजाअन, अन यहदी अल्लाह, अन यहदिया पर हमने नस्ब क्यों पढ़ा? अन की वजह से। क्यों? अन होता है हुरूफे नासिबा। कितने हुरूफे नासिबा है? 6। बाद में 5 का, बाद में अन लन के इज़न अन मुक़द्दरा। यार तुम लोग बहुत नोमिनल में कुछ नहीं आते। अन लन के इज़न, अन यहदिया, हदा यहदी,
इसके मानी आता है हिदायत देना। तर्जुमा क्या होगा? अन यहदियल्लाहु, अल्लाह ताला हिदायत दे, बिही, उसके जरिए। किसके जरिए? किसको दे? अत्तालिबीना, किसको? उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला उसके जरिए तालिबे इल्मों को हिदायत दे। किस चीज की? अत्तालिबीना ये जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा हालत रफा में वाव माक़बल मज़मूम के साथ, हालत नस्बो जर में या माक़बल, जैसे जाआ मुस्लिमूना वराइतु मुस्लिमीना वमरतु बिमुस्लिमीना। तो अत्तालिबीना ये किस हालत में है? हालत नस्बी में, क्योंकि यहदिया का मफ़ऊले बिही है। जान ये मुजाफ है, अन मस्दरिया है, यहदी पेले मुजारा सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, कलमे जलालत कुल हाल। कलमे क्यों की कायदा है, समझ, अगर कोई मारिफा आ जाए, कोई अलम आ जाए और उसके बाद फौरन फेल आ जाए, उसके बाद तो जो कलिम जो मारिफा होता है उसको हम बनाते हैं जुल हाल, और जो फेल आता है उसको बनाते हैं हम है हाल। क्योंकि जुलहाल मारिफा होता है अक्सर। जुलहाल क्या होता है? अक्सर मारिफा। ये कायदा हम जो बता रहे ना, ज़हन नशी रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। तो कल में जलाल बनेगा जुलहाल, और ताला फेल फाइल, और बाजार और ही मजरूर, चार मजरूर ताला से मुताल्लिक, ताला फेल अपने फाइल मुताल्लिक से जुमला फेलिया खबरिया होकर के हाल, जुल हाल अपने हाल से मिलकर यहदी का फाइल, यहदी का कौन हिदायत देने वाला है? अल्लाह ताला। अत्तालिबीना मफूले बिही, या ऐसा ही है अन हर्फ मस्दरिया यहदी फेल, और कलमे जलालत जुलहाल, ताला फेल हुआ फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर हाल, जुलहाल अपने हाल से यहदी का फाइल, बार पे जार ही मजरूर, चार मजरूर से मुताल्लिक हुआ यहदी का। अत्तालिबीन मफूले बिही, यहदी फेल अपने फाइल मुताल्लिक जुमला फेलिया खबरिया होकर के काबिल मस्दर। जो अन नगल होता है तो किसका माना जाता है? मस्दर के माने में हो जाता है। जब अन फेल पर दाखिल होता है तो किसके माने में कर जाता है? मीज़ान मुपन्न नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, फेल मुमिन नहीं पढ़ा। जब अन दाखिल होता है तो किसके माने में होता है? मस्दर के माने में। ये बन जाएगा पूरा जुमला मुजाफिले, और मुजाफिले से निकल के बन जाएगा किसका? सम्मैतु का मफूले लहू। जान पूरा अब क्या बन जाएगा? सम्मैतु का मफूले लहू, फेल अपने फाइल मफूले भी और मफूले लहू से जुमला फेलिया खबरिया होगा। ये तरकीब हमने आपको बता दी है, समझ में आ रहा? ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बाकी कवायद इसमें कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सम्मैतुहु मैंने उसका नाम रखा, हिदायत का नहवी, उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला इसके जरिए से तालिबे इल्मों को हिदायत दे। किस चीज? और क्या क्या? वरत्तबतुहु, और मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको तरतीब दिया अला मुक़द्दिमतिन। क्या? अब पूरी किताब की तफसीर बता रहे हैं हम, तफसीर किताब में क्या क्या चीजें बयान करेंगे वो यहीं पर ज़हन नशी। और ये लाइन कभी भी भूलना, ये वाली लाइन कभी भूलना। आप कभी भी पूछ सकते हैं कि इस किताब के अंदर कितने मुकद्दमे कितने फसल है, तो ये 24 घंटा क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। वरत्तबतुहु, रत्तबा फेल है, रत्तबा युरत्तिबु तरतीब बाब तफील, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, सेगा रत्तबतुहु, हु ज़मीर क्या है किसके साथ? फेल के साथ। क्या बनता है तरकीब में? ये कायदा याद रखोगे, तरकीब करने में दुश्वारी। रत्तबतु फेल ताफाइल हु मफूले भी अला हर्फ जार मुक़द्दिमतिन से कसरा क्यों? अला की वजह से। अला मुक़द्दिमतिन, अला हर्फ जार मुक़द्दिमतिन, मैंने उसको मुरत्तब किया है एक मुकद्दमे पर। क्या?
वसलासत अक़साम, वसलासत क्यों? क्योंकि मुक़द्दिमतिन पर बना दिया, इसको अट कर दिया और मातूफ का इराब एक होता है। जैसा इराब मातूफ का होगा वैसा ही इराब किसका होता है। तो सलास मुक़द्दिमतिन के नीचे कसर आ गया तो सलासती भी हल्के जर ही में रहेगा, तनवीन नहीं आएगी। क्यों? तो मुज़ाफ पर कभी तनवीन नहीं है, सलासतिन नहीं कह सकते कि मुज़ाफ पर कभी तनवीन। व सलासत अक़सामिन, मैंने उसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर तीन किस्मों पर। बितौफीकिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, ये पूरा बितौफीकिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, अजीज और अल्लाम ये मलिक की क्या है सिफत है दोनों। गालिब बादशाह, गालिब ज्यादा जानकार की तौफीक से। यहाँ पे तौफीक के नीचे कसरा क्यों है? बाकी वजह से। अल मलिकी के नीचे कसरा क्यों है? अल मलिक अजीज अल्लाम सब सिफत है किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की। समझे? इसलिए इस पर सब पर क्या बी की वजह से तौफीकिल मलिकिल अजीजिल अल्लाम, ये पूरा अल मलिकिल अजीज अल्लाम पूरा जुमला मुज़ाफ इलैहि किसके? तौफीक। इस वजह से सब पर क्या है नीचे कसरा है। इसी मसला आ गई। तरकीब नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं, तरकीब समझ में नहीं आ रही कोई मसला, तर्जुमा समझ में आ रही नहीं आ रहा, इबारत समझ में आ रही नहीं आ रही, कसरा क्यों पड़ा है, ज़म्मा क्यों पड़ा है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इतनी समझेगा। अब तक मैं उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला इसके जरिए तालिबे इल्मों को हिदायत दे और मैंने इसको मुरत्तब कर दिया एक मुकदमे पर तीन अक़साम पर, बादशाह गालिब ज्यादा जानकार की तौफीक से। समझे? ये दुआया जुमला था, इसको अल्लाह ने बयान कर दिया है। अब कुछ बातें गौर से समाप्त करें, इधर सुनो और से सुना करो, ध्यान से गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। और बैठने का ये तरीका नहीं है, अगर सुकून से बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। सुकून से आराम से बैठोगे, तेल लगाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे रखोगे, समझ नहीं आएगा। किताब को गौर से समाप्त करना है, सुनना है तो समझ में आएगा। चलिए इंशाअल्लाह हम कल बताएंगे क्योंकि बात खत्म हुई, टाइम हुआ खत्म। अब एक खाली तर्जुमा सुन लो, अम्मल मुक़द्दिमतु, तर्जुमा समाप्त कर लो, फिर हम कल इसकी तौज़ीह कर देंगे। अम्मल मुक़द्दिमतु, रहा मुक़द्दिमा मुक़द्दमा, अम्मल मुक़द्दिमतु, अम्मल मुक़द्दमतु, दो पढ़ दो क्या? फफिल मुबादी, इसमें मुबादी इब्तिदाई मसाइल में क्या? हाँ, जो मुकदमा है उसके अंदर इब्तिदाई बातें बयान की जाएंगी। अम्मल मुकद्दिमा तो रहा मुकद्दिमा फफिल मुबादी, तो इब्तिदाई मसलों में अल्लती यजिबु तक़दीमुहा, जिसकी तक़दीम वाजिब है, जिसकी जिसका मुकद्दम करना, जिसका मुकद्दम होना वाजिब है। लितवक्कुफ़िल मसाइल अलैहा, उस पर मसाइल के मौकूफ होने की वजह से। तवक्कुफ़ मसदर, वक़्फ़ा मौकूफ होना, समझना मौकूफ होना किसी पर। तो लितवक्कुफ़ी बाबे तफव्वुल से, किसे? बाबे तफव्वुल का मसदर है, बाबे तवक्कुफ़ी, नीचे कसरा क्यों? तवक्कुफ़िल मसाइल क्यों? क्योंकि तवक्कुफ़ का मुज़ाफ इलैहि अलैहा, उस पर ये है, ये क्या है? क्योंकि दोनों हरफे जारा, ज़मीर भी मबनी और अला भी मबनी, बस वो मुशाबह मबनी और ये असले मबनी। लितवक्कुफ़िल मसाइल अलैहा, उस पर मसाइल के मौकूफ होने की वजह से। फफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, बस इसके अंदर कितनी है फसलें? तीन फसलें हैं। फसूल ये जमा है फसल की,
और सलासतुन हम बताएंगे मुमय्यज तमीज के अंदर क्या कायदा है, वो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको पता हो जाएगा। तो मुकदमा है इब्तदाई बातों में जिसका मुकद्दम होना वाजिब है या जिसका मुकद्दम करना वाजिब है, उस पर मसाइल के मौकूफ होने की वजह से इसके अंदर 3 फसलें हैं। ये था मुकद्दमा, ये थी खुतबे की सारी बातें। अब असले मसला कहाँ से चलेगा? कल से मसला चलेगा जिसका हर बंदे का याद रखना लाजिम और जरूरी है। ये तो हमने खुतबे के अंदर खुतबे के बाद जो उन्होंने अपनी किताब की खुसूसियत बयान कर दी, उनको हमने तरकीब के साथ आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। और इबारत पढ़ने का तरीका भी हमने बताया है। इसको इबारत जैसे हम पढ़ते ना, इस पर गौर करोगे तो समझने में आप लिए आसानी होगी। बस लिहाजा इसको मेहनत से पढ़े। अब हम जब एक और पढ़ देंगे इबारत, उसके बाद इबारत हम नहीं पढ़ेंगे, एक इबारत और पढ़ेंगे, फिर इबारत हम फिर इबारत किसी से हम पढ़वा लेंगे, इबारत किसी से पढ़वाएंगे और फिर गलती होगी तो 1-2 बतवा छोड़ेंगे, फिर ठोकेंगे। क्या फिर क्या करेंगे? हाँ, ये समझ लो कायदे से। हमारे यहाँ हमारे क्लास में गैर मेहनती बच्चों की कोई जरूरत